हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद एवलिन। आज हम करने वाले हैं द पोम विंड विच इज़ इन क्लास 9 मेन रीडर बीहाइव ऑफ SCRT NCRT रीडर. ओके, एंड दिस पोम is written by Subramania Bharati and it has been translated by A.K. Ramanujan. Okay, and Subramania Bharati was born in 1882 and he passed away in 1921. He was a freedom fighter. Let us know a little bit about Subramania Bharati. So, Subramania Bharati was a poet and a writer. He was also a journalist and a freedom fighter. He was also a social reformer. And he had been sent into an exile by the Britishers to Pondicherry. And it is during his exile that he wrote these remarkable collections. Okay, he wrote Kannan Pattu in 1917, Kuyil Pattu in 1912, and Panchali Shabdam also in 1912. Now let us know a bit about A.K. Ramanujan. Okay, and as you can see here, A.K. Ramanujan was born in 1929 and he passed away in 1993. And he also received the Sahitya Academy Award in 1919. Okay. Now, what else did he do? So, he was a poet, he was also a professor, he was a philologist. Philologist hota hai language expert, someone who studies a language. He was also a translator, a playwright, and as I have told you, he won the Sahitya Academy Award posthumously. He had passed away in 1993 and he received the Sahitya Academy Award. It was conferred upon him posthumously in 1999. So these are some important details, facts about the writer and the translator of this poem. Now let us start with the poem. Okay, now wind symbolizes two things. See, on the one hand, it symbolizes the rage of nature. On the other hand, wind symbolizes the difficulties that we face in a life, that human beings face in their lives. So the poet says, "Wind, come softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf." तो ये कैसे हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जैसे हम बोलते हैं पॉलिश योर शूज़, व्हाट आर द प्लान्स, इस तरह से. तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यूज़ करके और इस तरह से हमको ऐसा लगता है एज इफ द पोएट हैज़ सम कंट्रोल ओवर द विंड, एज इफ द पोएट कैन कंट्रोल द विंड एंड ऑर्डर द विंड अबाउट. बट दैट्स नॉट द केस. ही कैन नॉट ऑर्डर. द विंड वुड नॉट लिसन टू हिम बिकॉज ही सेज देयर, लुक वॉट यू डिड. है ना, इतना मना करने के बाद भी देखो तुमने क्या कर दिया, है ना. यू थ्रू देम ऑल डाउन. देम का मतलब क्या है यहाँ पे? द बुक्स. जो मना कर रहे थे बुक्स को मत बिखेरना, तो तुमने फिर भी उन बुक्स को बिखेर ही दिया. देखो तुमने क्या किया है. यू tore the pages of the books, you brought rain again. See how he has juxtaposed these two lines. ठीक है, इसमें ये पता चलता है कि द विंड कैन डू समथिंग as unimportant or as petty as tearing the books of a page, like a child. And the wind can do something which is as powerful as bringing about rain. See what you've done, you've brought rain again. तो कैसे एक ही ब्रेथ में दोनों चीज़ें बोली गई हैं, है ना. फिर बोलते हैं ये, You're very clever at poking fun at weaklings. Weaklings कौन है? यहाँ तो हम ही हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, है ना, जो स्ट्रॉन्ग विंड के सामने भी छोटे पड़ जाते हैं, है ना. हमारा उनके ऊपर, नेचर के एलिमेंट्स ऑफ नेचर के ऊपर, है ना, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. सो
ही सेज एंड देन ही गिव्स एन एग्जाम्पल कि क्या होता है विंड के आने से क्या होता है. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स. तो कहाँ तो इन्होंने शुरू किया था किससे? हाउसेस से, है ना. कैसे हाउसेस क्रम्बल कर रहे हैं, गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, है ना. क्रम्बलिंग हाउसेस, डोर्स, राफ्टर्स होते हैं जो बड़े बड़े प्लैंक्स, लकड़ी के प्लैंक्स जो लगे होते हैं छत पे, है ना. जैसे साउथ इंडियन घरों में आपको देखने को मिलता होगा. अगर आप उनके घर का इंटीरियर देखेंगे, ऊपर जो छत है जिस तरह से बनी होती है वो राफ्टर्स लगे होते हैं वहाँ पे उनकी छतों में. तो फिर क्रम्बलिंग वुड, फिर उसके बाद में आ गए क्रम्बलिंग बॉडीज. नाउ व्हाट डज विंड हैव टू डू विद दिस? क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स. विंड का यहाँ पे क्या इफेक्ट होता है? ही सेज द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल. तो देखिए यहाँ तो विंड को एक चाइल्ड की तरह ट्रीट किया गया है. नाउ द विंड हैज़ ग्रेजुएटेड टू बिकमिंग द विंड गॉड. और बताया जाता है कि जो विंड गॉड है वो विनो क्या होता है? जो सूप से जब गेहूं को फटक करके गेहूं को और भूसे को अलग किया जाता है उसे कहते हैं विनोइंग. ठीक है. क्रशेस देम ऑल मतलब जो भी कमज़ोर चीज़ें हैं, चाहे वो घर हो, है ना, या वो राफ्टर्स हो, या वुड हो, या शरीर हो, या जिंदगियां हो, या हार्ट्स हो. मतलब कहने का ये है कि अब विंड गॉड जो है ना वो किस में कन्वर्ट हो गया है हमारे लिए, पोएट के लिए, अ सिंबल ऑफ द डिफ़िकल्टीज़ दैट कम इन लाइफ. और कौन खड़ा रह सकता है डिफ़िकल्टीज़ के सामने? ये तो नहीं खड़े रह सकते हैं. जो कमज़ोर हैं, चाहे वो फिज़िकल विंड हो, नेचर, एलिमेंट ऑफ नेचर विंड हो, तो उसके सामने घर, दरवाजे, राफ्टर्स ये सब नहीं खड़े रह सकते हैं क्योंकि विंड उनको तोड़ देगी अगर वो कमज़ोर हैं तो. लेकिन जब विंड को हम एक सिंबल लेते हैं एज अ सिंबल ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिफ़िकल्टीज़ दैट कम इन आवर लाइव्स, तो वो किसकी छटनी कर देते हैं? जो फ्रेल होते हैं, जो पहले से ही वीक हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं, है ना. चाहे वो आपका हार्ट, आपका दिल, आपका दिलेरी, आपकी विल पावर हो, या आपकी बॉडीज़ हो, या आपकी लाइव्स हो. एंड ही सेज ही क्रशेस देम ऑल, सबको ख़त्म कर देता है. ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम. ये हमको एग्जाम्पल बता दिया है. कितना कुछ बोला विंड को, विंड ने सुना क्या? नहीं सुना. सो ही सेज ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम. तो विंड ये नहीं सुनेगा. उसी तरह से जैसे कि मुश्किलें हमारी नहीं सुनेंगी. सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. तो ये अब पहले तो बात कर रहे हैं किसकी? घरों की मतलब मकानों की बात कर रहे हैं, ये हाउसेस की बात कर रहे हैं. और अब ये किसकी बात करने लगे? होम्स की. क्योंकि होम्स में किसकी बात कर रहे हैं? ये मुश्किलातों की बात कर रहे हैं, मुश्किलों की बात कर रहे हैं. और ये बोल रहे हैं कि जब तक हमारे घर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, है ना, तो विंड हमको इसी तरह, मुश्किलें हमें इसी तरह परेशान करती रहेंगी. लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली. दरवाज़ों को फर्म बनाएं. प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी. और न सिर्फ हमारे घर परिवार, लेकिन हमारे जो शरीर है, शरीर भी तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी तो मुश्किलों के आगे हम खड़े रह पाएंगे. तो लेट अस फर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेडफास्ट मतलब स्ट्रॉन्ग, मतलब आपका जो दिल है, आपकी जो अंदर स्पिरिट है वो भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. और वो बहुत फेथ होना चाहिए उसके अंदर. अगर फेथ नहीं होगा तो आप टूट जाएंगे मुश्किलों के आगे. डू दिस. तो ये इन्होंने हमको एक फॉर्मूला बता दिया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये फॉर्मूला है हमको मुश्किलों के सामने खड़े रहने का. एंड ही सेज डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस. अगर आपने ऐसा कर लिया तो जो विंड है ना, जो मुश्किलें हैं आपकी, वो आपके दोस्त बन जाएंगी. क्यों? क्योंकि मुश्किलों से ही तो हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं, है ना. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स. जो कमज़ोर आग होती है, जो कमज़ोर लौ होती है, वो तो हवा के आगे बुझ जाती है. लेकिन
आग अगर हवा से हमेशा ही नहीं बुझ जाती, आपने देखा ना जंगल की आग तो बहुत बढ़ जाती है हवा करने से, है ना। तो जब हमको चूल्हे में आग लगानी होती हम भी तो हवा करते हैं ना ताकि आग बढ़ जाए, ठीक है। तो ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, और जो आग जो स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब हमारे अंदर भी जो शक्ति है अगर स्ट्रॉन्ग है ना, अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं तो मुश्किलें हमें और ताकतवर बना देंगी। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, और जो विंड है उसकी जो फ्रेंडशिप है वो गुड है। वी प्रेज हिम एवरी डे, ठीक है, क्योंकि वो हमारी मित्र है, जो जो मुश्किलें हैं वो हमारी मित्र हैं। ये हो गया है इस पोम का एक्सप्लेनेशन। अब जल्दी से सिंबलिज्म, पर्सोनिफिकेशन वगैरह देख लेते हैं जो कि इस पोम में यूज़ हुई हैं। अच्छा, इस पोम में ना जो राइम है या राइम स्कीम है वो हमको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पोम ना ट्रांसलेटेड है ना, इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है। तो इसलिए हमको यहाँ पे तमिल से ट्रांसलेट की हुई मिली है, तो हमको इसलिए यहाँ पे राइम स्कीम तो मिल नहीं पाएगी। तो ये पोम तो हो गई है एक्चुअली ब्लैंक वर्ड्स में। ब्लैंक वर्ड्स मतलब जब कोई राइमिंग स्कीम ना हो, राइम स्कीम ना हो। अब हम देखते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, सिंबलिज्म। सिंबलिज्म कहाँ है? जब ये जो विंड गॉड है या विंड है यहाँ पे, ये सिंबलाइज ये कर रहा है किसको? विंड को, जो कि नेचर की एक एंटिटी है ना, नेचर का एक एलिमेंट है, उसको सिंबलाइज कर रहा है। और ये मेटाफर भी है किसके लिए? मुश्किलों के लिए एक मेटाफर भी है विंड। तो सिंबलिज्म और मेटाफर तो ये हो गया है। फिर है पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि विंड को ही पर्सोनिफाई किया गया है, ही बोला गया है। लुक व्हाट यू डिड, जैसे इंसान की तरह बात की जा रही है उससे, तो इसको पर्सोनिफाई किया गया है। और रेपिटेशन भी है, देखिए डोंट, ठीक है। यू टोड द पेजेस, यू ब्रॉट ट्रेन अगेन, तो पर्सोनिफिकेशन भी है यहाँ पे, ठीक है। तो रेपिटेशन तो हमको, हाँ रेपिटेशन, ये देखिए क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग, ये रेपिटेशन के एग्जाम्पल्स हैं, है ना। फिर यहाँ कह सकते हैं अलिटरेशन है, फायर्स रोर एंड फ्लरिश, अलिटरेशन है। विंड विनोज, यहाँ पे अलिटरेशन है। वोंट वॉट, अलिटरेशन है ना, ठीक है। तो ये हमारा विंड का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है यहाँ पे, है ना। एंड आई होप दिस इज़ बीन यूजफुल। प्लीज़ come back to the channel for more study material. Thank you. Bye bye.